Hello students, today's topic is indigenous banking system. So indigenous banking system means the banking system which was developed in our country in our own style. As we are seeing the banking, it is more systematic, more organized, but earlier times it was not as systematic as we are seeing today. So how such banking system was developed at that time? So the story behind is that as the economic life progressed, metal began to supplement other commodities as money because of its durability and divisibility. Students, as you know that earlier time we were having the barter exchange system. In the barter exchange system, we exchange the goods for another. For example, we want to purchase milk, then we have to give some another good. But if we don't have any another good, we may use metal as money because metal is durable and divisible. So we started using gold as the metallic money. Gold is the soft metal, can be divisible, and gold is durable also. So in such manner, metal becomes the money and supports the medium of exchange. Hence the economic activities were accelerated. हमारी economic activities बढ़ने लगे because of evaluation of money. इस तरीके से people who have more money and want to earn interest, then they started deposit their money with the state. Just because of इसके कई सारे रीजन भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, या टू कंट्रोल द रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी ना हो जाए, डेकॉइट्स प्रॉब्लम भी पहले बहुत था. सो दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग देयर मनी विद द मुनीम और द रिच पर्सन, स्ट्रांग पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी. हैंस द पर्सन हैविंग द मोर मनी, द पर्सन जो रिच पर्सन था उसके पास इस तरीके से बहुत पैसा आने लगा. इट इज कॉल्ड द पब्लिक डिपॉजिट्स. देन आफ्टर one who needs money directly approach to the person called Seth. He is also called the banker. He lend the money to the public for the personal purpose, for the business purpose, for any kind, for any type of the need. He lends money to such person. In this way, the indigenous banking system were developing. Hence, these Seths, these bankers were also financing the domestic as well as foreign trade with the currency and letter of credit. ये मदद भी करते थे फॉरेन ट्रेड को करने के लिए. बट व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है, एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस स्टेटमेंट है कि जैसे कि कोई पर्सन बाहर के देश में रहता है, लाइक इन अमेरिका, ही वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो वो चाहता है कि पहले मैं गुड्स को रिसीव कर लूँ फिर उसके बाद पेमेंट करूँ. लेकिन हमारे देश के जो एक्सपोर्टर है इंडियंस को कैसे विश्वास आएगा कि ये हमें पेमेंट कर देगा? तो जब भी डील होती है, जब भी बात होती है कि यस आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 2 मंथ, तो ये बोलेगा कि आप इसको एक प्रॉमिस को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखकर हमें दे दीजिए और आपके किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के थ्रू गारंटी करवा कर दे दीजिए. देन वी विल ट्रस्ट ऑन यू कि दैट यू विल मेक द पेमेंट एट एनी कॉस्ट. तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे देश में आता है. हमारा देश का जो एक्सपोर्टर होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को, सच एक्सपोर्टर प्रेजेंट दिस लेटर ऑफ क्रेडिट टू अवर नगर सेठ, देन नगर सेठ गिव्स द मनी अगेंस्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर. In that manner, the foreign trade transaction were financed by such Nagar Seth. So, meaning of letter of credit. Letter of credit is a promissory note that buyer will pay sum assured on certain future date. Hence, the seller of good will discount the letter of credit. Discount means getting the money from banker. Earlier time, documents such as hundi and chitti were in use for carrying out the transaction in which money passed from hand to hand. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा हुंडी और चिट्ठी किस तरीके से वर्क करती है. फॉर एग्जांपल, एक अमेरिकन है, नेम है उसका स्मिथ, और 2 इंडियन है, राम और श्याम. अमेरिकन ने एक्सपोर्ट किया राम को गुड्स 1000 रुपए का. नाउ अमेरिकन वांट्स 1000 रुपीज फ्रॉम द राम.
और साथ में स्मिथ जो अमेरिकन है उसने शाम से इंपोर्ट किया 1000 रुपीज का गुड्स. व्हाट विल हैपन नाउ? द स्मिथ नीड 1000 रुपीज फ्रॉम द राम एंड स्मिथ हैज टू पे 1000 रुपीज टू द श्याम. अब राम और श्याम तो एक ही कंट्री में रहते हैं, तो स्मिथ सिर्फ एक चिट्ठी जारी करेगा, एक हुंडी जारी करेगा कि राम स्मिथ को इतना पैसा दे दीजिए. तो इस तरीके से ये सेटलमेंट, ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हो गया. तो हुंडी ऑल्सो वर्क टू सेटल द फॉरेन ट्रांजैक्शन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हुंडी को डिस्क्राइब किया है कि इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अनदर to pay a certain sum of money to person named in the order. ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो कि एक पर्सन राइटिंग में किसी दूसरे पर्सन को देता है और कहता है कि इतना पैसा आप किसी थर्ड पर्सन को दे दीजिए. अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब है कि अगर स्मिथ शाम को कहता है, अगर स्मिथ राम को कहता है कि शाम को पेमेंट करिए, तो राम मना नहीं कर सकता, बिकॉज राम हैज टू पे मनी to Smith, and if Smith is directing to the Ram, then Ram has to pay money to the Sham. So it is what the functioning of hundi. Okay, what kind of the economic activities were performed earlier? पहले के टाइम पे किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी? As you know that our Indian economy is the agricultural economy. Earlier time में we were doing agriculture and allied activities like domestication of animals, animal husbandry. ये सारी चीजें हमारे पहले के मेन ऑक्यूपेशन हुआ करते थे. The reason behind for the economic activity, such economic activities, इट इज़ वॉट द क्लाइमेटिक कंडीशन. हमारा देश एक ट्रॉपिकल एरिया में आता है. वी आर हैविंग द विंटर, मानसून एंड द समर. सो ड्यू टू दिस फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वी वर एबल टू रेज 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और द ईयरली क्रॉप. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज मीन्स द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज, जो भी गुड्स प्राइमरी एक्टिविटीज के थ्रू बनता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के थ्रू बनता है, देन आफ्टर वी ट्रांसफॉर्म दैट प्राइमरी गुड्स इनटू द फिनिश गुड्स. जैसे कि कॉटन का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के थ्रू हुआ, देन वीविंग ऑफ द कॉटन, इट मीन्स क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग. उसी क्लॉथ को फिर डाई करना मीन्स कलरिंग ऑफ द क्लॉथ. मेकिंग क्ले पॉट्स, कुछ हम मिट्टी से रिलेटेड कुछ जैसे कि यूटेंसिल्स बनाते थे. हैंडीक्राफ्ट वगैरह का भी काम था, हस्तशिल्प कला और कॉटेज इंडस्ट्रीज, हर घर में प्रोडक्शन का वर्क किया जाता था. मैसनरी मैन्युफैक्चरिंग, ईंटों का भी प्रोडक्शन होता था. ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स लाइक बल्क कार्ट्स, बोट्स, शिप्स, इनका भी प्रोडक्शन होता था. और ऐसा करने से भी जनरेट्स मोर सरप्लस. हम इस तरीके से बहुत इनकम अर्न करते थे जो कि फर्दर इन्वेस्टमेंट में हम यूटिलाइज करते थे. थर्ड आता है वर्कशॉप्स. वर्कशॉप्स का मतलब था कि ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे. इसमें हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते थे जो 100% एक्सपोर्ट किया जाता था. और इन वर्कशॉप में स्किल्ड लेबर्स, क्वालिफाइड और एक्सपर्ट लेबर्स काम करते थे. हैंस इस तरीके से जो आर्टिशंस हुआ करते थे, क्राफ्टमैन हुआ करते थे, वो कई सारी चीज़ें सीखते थे. दे इम्पार्ट स्किल इन देमसेल्व्स, दे लर्न मैनी थिंग्स एंड दे also impart this skills and knowledge to their coming generation. और इस तरीके से पहले के टाइम पे काम होता था. Now the second part, rising of intermediaries. Intermediaries means the middlemen, those who are promoting the business, those who are contributing into the business. Like banker is an intermediary, it is supporting the international trade. लेकिन इसी के साथ में और भी कई तरह के intermediaries वहाँ पर अराइज हुए. लाइक कमीशन एजेंट, कि अगर किसी को बायर को सेलर नहीं मिल रहा है, कि some person want to certain type of product, तो हम बताते हैं कि यस इस तरह का प्रोडक्ट कौन बेचता है. तो देयर आर सम कमीशन एजेंट जो किसी सेलर को बायर अवेलेबल करवाता है, बायर को सेलर्स अवेलेबल कराते हैं. ब्रोकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर बोथ फॉर द होलसेल एंड रिटेलर्स. तो इस तरीके के जो मिडिल मैन है प्रेजेंट टाइम में, ट्रांसपोर्टर्स, होलसेलर, डीलर्स, ब्रोकर्स, दिस ऑल वर इवॉल्व अर्लियर. ये सब पहले के टाइम पर इस तरीके से अराइज होना शुरू हो गए. सो an expanding trade brought in the huge amount of the silver bullions into the Asia, and large share of that bullions gravitated towards India.
हमारा कंट्री पूरे वर्ल्ड के मिडिल में पड़ता था, इंटरनेशनल ट्रेड का एक हब बन गया था और पूरे विश्व का सारा पैसा हमारे देश में आना शुरू हुआ और हमारे ही देश के बहुत सारे लोग, our Indians were started becoming the middleman of the international trade। अगर यूरोप को चाइना में, जापान में जाकर भी बिजनेस करना है, they were having the head office, their international trade office was established in India। इस तरीके से many Indians were playing the role of intermediaries for supporting द इंटरनेशनल बिजनेस और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड का पैसा इंडिया में आने लगा। और हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द जगत सेठ, इस तरीके से जगत सेठ भी, पहले नगर सेठ मतलब कि द सेठ ऑफ लोकल कम्युनिटी, और ऐसे जगत सेठ भी होने लगे। मोस्ट ऑफ द मिलियनियर्स वर डेवलप्ड इन आवर कंट्री, दे वर कॉल्ड एज द जगत सेठ। और ये जगत सेठ का कॉन्सेप्ट भी हमारे देश में बढ़ता गया बिकॉज रिचेस्ट पर्सन हमारे देश में बढ़ते गए। फॉरेन ट्रेड वाज फाइनेंस्ड बाय द लोन, ये जगत सेठ इंटरनेशनल ट्रेड को भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया। एमरजेंस ऑफ द क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अवेलेबिलिटी लोन एंड एडवांस एनहेंस द कमर्शियल ऑपरेशन, ये इस तरह की क्रेडिट ट्रांजैक्शन और लोन अवेलेबिलिटी से फॉरेन ट्रेड कमर्श बढ़ता गया। Ultimately, the Indian subcontinent enjoyed the fruit of favorable balance of trade। इसका मतलब ये है अल्टीमेटली हमारे ही देश से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा और बहुत कम इंपोर्ट होने लगा। हमारा देश का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड रेस्पेक्टेड होने लगा। हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से वी वर एंजॉइंग पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट मीन्स एक्सपोर्ट्स वर मोर देन इम्पोर्ट और अल्टीमेटली we were earning more foreign currency, more gold। That's why we were called as the golden sparrow।